Welcome student. Now I am going to last part of the acquired immunity. पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट में देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्स्ट लेक्चर में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने वहाँ उसको समझा. Then second lecture of T cell, B cell with their CD antigen, and third lecture was cell mediated generation and cross regulation of the T helper subsets, and now clonal selection and expansion. That is the most important part. ये सारी चीज़ों को हम अब एक जगह समझेंगे. So now start clonal selection and expansion. The clonal selection theory was proposed by Frank Burnett in 1950s. However, the term clonal selection is not a complete description of the theory, as clonal expansion goes hand in glove with the selection process. The main principle of this theory is that a typical individual has a multitude of different types of T cell clone based on their receptors. In this use, a clone is a group of lymphocytes that share the same antigen receptor. Each clone is necessarily present in the body on low number. Otherwise, the body would not have room for lymphocyte with so many specificities. एक्चुअली हम सब जानते हैं और देखा मैंने कि जब टी सेल रिकॉग्निशन था तो ए पर्टिकुलर एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्टिकुलर टी सेल, बिकॉज पर्टिकुलर टी सेल हैव अ यूनिक रिसेप्टर फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन. ओके, और फिर उस टी सेल का फर्दर क्या होना है, तो वो एक क्या हुआ, टी सेल सेलेक्टेड हुआ. तो वहाँ हम उसको कह सकते हैं कि वो एक क्लोनल सिलेक्शन हुआ, एक पर्टिकुलर टी सेल सेलेक्ट हुआ. लेकिन सिर्फ सिलेक्शन से ही काम नहीं होगा, हमें लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ और सेल्स की रिक्वायरमेंट है. सो इट गोज़ अंडर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ एक्सपेंशन. So only those clone of lymphocyte whose receptors are activated by the antigen are stimulated to proliferate. जो select किया T cell या B cell वही अब proliferate करेगा. Keep in mind that most antigens have multiple antigenic determinants. So a T cell response to a typical antigen involves a polyclonal response. A polyclonal response is the stimulation of multiple T cell clones. Once activated, the selected clones increase in number and make many copies of each cell type, each clone with its unique receptor. ठीक है, मैंने आपको बताया था जब इनेट इम्यूनिटी तब लास्ट में बताया था कि कोई भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जिसमें मल्टीपल एंटीजन है, दे हैव नंबर ऑफ एपिटॉप्स, नॉट सिंगल टाइप ऑफ एपिटॉप, मेनी टाइप्स ऑफ एपिटॉप्स में प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया. तो एक पैथोजन पे नंबर ऑफ एपिटॉप्स की प्रेजेंस हो सकती है और एक टी सेल सिर्फ एक ही टाइप के एपिटॉप को रिस्पॉन्स करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा. अगर मल्टीपल टाइप ऑफ बैक्टीरिया में एपिटॉप्स हैं, दैट बैक्टीरिया विल किल विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टी सेल्स. By the time this process is complete, the body will have large numbers of specific lymphocytes available to fight the infection. Okay. So in brief, we can say clonal selection is when antigen encounter the immune system, its epitopes eventually will react only with B lymphocyte or T lymphocyte also with B cell receptor or T cell receptor on their surface that more or less fit, and this activates those B lymphocyte or T lymphocyte. This process is known as clonal selection. जब किसी भी
एंटीजन जो पैथोजन का एपिटॉप है, जो एंटीजेनिक डोमेन है, वो किसी भी बी सेल रिसेप्टर से या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो हमारा वो कहा जाता है क्लोनल सिलेक्शन. एंड देन क्लोनल एक्सपेंशन, व्हाट इज दिस? साइटोकाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय इफेक्टेड helper T cell, T2 helper lymphocyte enable those activated B lymphocyte to rapidly proliferate to produce large clones of thousands of identical B lymphocyte. In this way, even though only a few B lymphocytes in the body may have an antibody molecule able to fit a particular epitope, eventually many thousands of the cell are produced with the right specificity. This is referred to as clonal expansion. Actually हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल जो दिया हुआ बी सेल का है ही क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन है, बट इन नेक्स्ट डायग्राम वी एक्सप्लेन अबाउट द क्लोनल सिलेक्शन ऑफ टी सेल एंड बी सेल बोथ. नाउ here is the clonal selection and expansion during adaptive immunity. So see carefully or look carefully. Actually diagram बहुत complicated दिख रहा है, but it is very simple. हमें step by step को समझना होगा. There are two story. One is here, one story, and another is here, second story. What is the story? Actually आप याद करिए, जब हमने आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बताया था तो वहाँ एंड में ये बात कही थी कि जब किसी बैक्टीरिया टिश्यू डैमेज के पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो WBC, अ काइंड ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, वो जो है मार्जिनेशन होगा, उसमें वो मार्जिन पे आएंगे, ब्लड वेसल्स के मार्जिन पे आएंगे. डाइपेडेसिस होगी, वो ब्लड सर्कुलेटरी वेसल से बाहर आएंगे, ब्लड वेसल से बाहर आएंगे और टिश्यू जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे वो माइग्रेट करेंगे और वहाँ पे जाके बैक्टीरिया को फेगोसिटोज करेंगे. तो अब इसमें टू वे से मैंने बताया था कि टू WBC, two kinds of neutrophil and macrophages. These two WBCs come there and involve in the phagocytosis process to kill the bacteria. तो उसमें आप याद करिए, मैंने बताया था number of neutrophils are abundant, so they come first and after that macrophages come there. Neutrophils बहुत ही मतलब केयरलेस है. उसको ये कहा, मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल जो है वो जो इनगल्फ करता है पैथोजेंस को, तो उसके एंटीजेंस को वो फ्रीली छोड़ देता है टिश्यू में जहाँ पे वो इन्फेक्शन था. बट मैक्रोफेजेस जो है वो बहुत सीरियस पर्सन है, वो जो है पैथोजेन को छोड़ता नहीं है, वहाँ उसको कैरी करके MHC पे लेके उसको जाता है लिम्फ नोड में और वहाँ पे हमें उसको प्रेजेंट करता है टी सेल के लिए. ठीक है. सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टोरी, दैट इज़ इन विच APC मैक्रोफेज, दैट इज़ APC गो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन टू द लिम्फ नोड. ये लिम्फ नोड को जाते हैं. ये जो हमारा है APC विथ एंटीजन. एंटीजन कैसा है? दैट इज़ displayed on the surface of the antigen presenting cell by MHC. Okay, so MHC के थ्रू जो exposed एंटीजन है वो जो है वो टी सेल में के पास मतलब कि लिम्फ नोड पे जाएगा टी सेल सिलेक्शन के लिए. Here that is the T cells. Number of T cells, a clone of T cell, variety of clones of T cell present in the lymph node. They have different kinds of receptor for different types of antigen that can exposed to the person.
तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स, दैट इज़ ये हेल्पर टी सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल्स दे हैव दिस T cell have this kind of receptor, this has this type of receptor, this has a spherical type of receptor, this has some different types of, so they all these are different because they have genetically pre-programmed receptor which are produced on the surface of T cell because they are genetically programmed है, इसलिए उनका जो रिसेप्टर होगा वो एक दूसरे से वैरी करता है, डिफरेंट होगा. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन. ओके, here there is a antigen. This red body is the antigen. This is the AG antigen, and for this antigen this T cell is selected, this helper T cell is selected, so there is a clonal selection. ठीक है, when antigen loaded and antigen presenting cell reaches to the lymph node, that is recognized by the T helper cell, this cell, and bind with it. So there is a TCR of this T cell bind with the antigen. Okay, so there is an interaction between antigen and TCR of the T helper cell. Always recognize remember that this T cell only bind the antigen which is peptide only and presented by the processed by the MHC. ये जो हेल्पर टी सेल हैं ये हमेशा सिर्फ उसी एंटीजन को इंटरटेन करेंगे, उन्हें ही रिकग्नाइज करेंगे जो पेप्टाइड हैं. इफ़ एंटीजन इज़ नॉट पेप्टाइड दे नेवर इंटरटेन, वो कभी भी उसको इंटरटेन नहीं करेगा. अगर पेप्टाइड है तभी ये इससे बाइंड करेंगे. ओके, तो एक ये पॉइंट है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एंटीजन को MHC नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, एंटीजन नहीं MHC उसको प्रोसेस करके नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, सो टी सेल जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी. तो 2 पॉइंट हो गया कि हियर एंटीजन शुड बी प्रेजेंटेड बाय द MHC, वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज द एंटीजन शुड बी पेप्टाइड. सो आफ्टर दीज 2 सिचुएशन देन there is a T helper T cell to which bind with the antigen. Okay, now during this first story, when TCR bind with this, there is a activation or communication between these and these 2 cells. ठीक है, there is a activation in CD4 cell also. CD4 molecule is also here. This one is a CD4 molecule which confirm the presence of MHC. ये जो है वो confirm करता है कि MHC present है या नहीं है, MHC से प्रोसेस्ड एंटीजन है या नहीं है. तो ये एंटीजन ने बाइंड किया TCR से, और MHC को कंफर्म करने के लिए ये एक CD4 आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन हमने पहले भी देखा टी हेल्पर सेल में CD4 होगा. नाउ देयर इज ए कनेक्शन और इंटरेक्शन विच इज़ नोन एज फर्स्ट सिग्नल और प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल. बात समझ में आ रही है? जैसे ही टी सेल का इंटरेक्शन हुआ एंटीजन से, हम उसको कहते हैं फर्स्ट सिग्नल और प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल. दिस वन प्राइमरी स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल. ओके, नाउ when this T cell is stimulated, after that next step there is a protein
CD3. This one is the CD3 inside the helper T cell, which is stimulated and give signal to the nuclear machinery. ओके, फिर ये यहाँ से एक सिग्नल मशीनरी को जाएगी. So activation of gene. Meanwhile, there is a interleukin, a kind of cytokine, is secreted. This one interleukin secreted by the APC. So macrophage or APC secrete interleukin first. So this interleukin is secreted by a macrophage, is accepted by the receptor present on the this one. Here is the receptor for the interleukin first. So this interleukin bind with this receptor. When this receptor bind with the interleukin first, so there is a signal to the nucleus. Here another co-stimulatory molecule. Here is a co-stimulatory. This one is the co-stimulatory molecule. This one is the B7 and is communicated with the CD28. So there is a co-stimulation. Okay, this one is the direct stimulation. ये हो गया. तो आप इसको कह सकते हैं this is a primary stimulation and there is second signal or co-stimulation of T cell. बात समझ में आ गई? क्या क्या हुआ? जब रिसेप्टर से TCR से एंटीजन बाइंड हुआ और CD4 ने इसको जो है कंफर्म कर दिया कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ MHC class 2 है. So there is a this interaction causes the primary stimulation, the first signal, and after that CD3 is stimulated. This give message to the nucleus, and meanwhile interleukin first is secreted by macrophage, and another co-stimulatory molecule is also present on the macrophage and TCR T lymphocyte. So there CD28 which present on the T helper cell and B7 molecule which present on the macrophage. So there is a interaction between these two. So these two interaction, that is the second signal, or we can say co-stimulation of T cell. सो यहाँ पे हमने दो तरह का सिग्नल देखा. एक प्राइमरी सिग्नल हो गया और एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल. प्राइमरी स्टिमुलेशन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड TCR, antigen which is presented by MHC, not free antigen. Never T helper cell never respond free antigen. ठीक है, and antigen should be peptide. ये इंटरेक्शन हो गया. नाउ ऑल दीज गिव मैसेज टू न्यूक्लियर मशीनरी टू synthesize new molecules. So when gene first, here is a gene first, actually this one, see here. So number of stimulation, this is stimulation, this is stimulation, this is so all these things stimulate the nucleus. So there is a first gene, second gene and other genes. So this first gene secrete a molecule that is interleukin 2. Interleukin is a kind of cytokine that is secreted by the gene 1. Then gene 1, and here again gene 2 is also produce a protein which bind with the surface, this one. Next second gene which produce a molecule that is protein which bind with the surface. Okay, and now this is the receptor for the interleukin 2. This molecule protein is receptor for the interleukin 2. Now this interleukin 2 then bind with this receptor, so interleukin 2R. Okay, so here interleukin 2R is a receptor
because name is interleukin 2R, because interleukin 2 bind with this. When interleukin 2 bind with receptor, that is ऑटोस्टिमुलेशन. ऑटोस्टिमुलेशन मैंने आपको बताया था अभी पिछले उसमें कि जो है इंटरल्यूकिन 2 जहाँ पे हम लोग क्रॉस रेगुलेशन देख रहे थे, वहाँ पे बताया था कि इंटरल्यूकिन 2 जो है वो क्या है, एक ऑटोक्राइन पाथवे फॉर्म करती है. तो ये यहाँ इसी सेल से सिक्रीट हुआ और इसी से बाइंड हो गया. दैट इज़ ऑटोक्राइन पाथवे. दिस इज द ऑटोक्राइन पाथवे, ऑटोस्टिमुलेशन. ठीक है, तो ये ऑटोस्टिमुलेशन हुआ. सो व्हेन दिस इंटरल्यूकिन 2 stimulated, bind with the receptor and stimulated the nucleus for next gene, that is mitotic. So that gene activated and lots of mitotic division occur. So there is a number of T cells are formed. Okay, so this is the expansion of T cells. Here is the selection, clonal selection, जो कि आपको देखा मैंने कि एंटीजन यहाँ पे एक्सपोज हुआ बाय द एपीसी और ये जो है वो गया लिम्फ नोड में और एक सर्टेन टाइप ऑफ जो कि उसके लिए ही प्री प्रोग्राम था, पर्टिकुलर उस जीन के लिए, दिस स्फेरिकल एंटीजन के लिए ही प्री प्रोग्राम था और उस टी सेल ने उसको रिकग्नाइज़ किया एंड फाइनली बाइंड एंड देयर इज़ अ फर्दर स्टोरी स्टार्ट. ओके, सो देयर इज़ ए number of T cells are obtained, so because of mitotic division, so there is a mitosis. Okay, so अब mitosis हो गई and there is a clonal expansion. Lots of T cells are formed, proliferated. So expansion, clones expanded or clonal expansion. On the other side, the second story, आपको मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल आर वेरी केयरलेस सेल्स. वो जो है फेगोसाइटोज किया और अपने पैथोजन के जो पार्टिकल्स थे उसको वहीं टिश्यू में रिलीज़ कर दिया. मैक्रोफेज ने तो होल्ड करके उसको ले आया, प्रोसेस करके लिम्फ नोड में गया, बट जो न्यूट्रोफिल था उसने बहुत ही केयरलेसली वहीं पे छोड़ दिया टिश्यूज़ में. अब वो जो है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो एंटीजन जो है वो आपके बी सेल से बाइंड करेंगे, रीचेस टू द लिम्फ नोड अगेन, वो भी, लेकिन वहाँ फ्री एंटीजन होगा, दैट इज़ फ्री एंटीजन्स विच रीचेस टू द लिम्फ नोड एंड बाइंड विद द बी सेल. ध्यान रखिए, टी सेल कभी भी फ्री एंटीजन को बाइंड नहीं करेगा, हमेशा एमएचसी से प्रोसेस्ड एंटीजन को ही वो बाइंड करेगा. दूसरा पॉइंट, बी सेल किसी भी काइंड के एंटीजन को रिस्पॉन्ड कर सकता है. दे मे बी पेप्टाइड, दे मे बी कार्बोहाइड्रेट, दे मे बी न्यूक्लिक एसिड, दे मे बी अदर थिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिस्पॉन्ड बाय द बी सेल. बट टी सेल कभी भी दूसरे को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एक्सेप्ट पेप्टाइड. सो देयर इज़ अ अटैचमेंट ऑफ फ्री. This, look here, there is a, like T cell, there is a number of B cell, they have different types of receptor that is known as BCR, B cell receptor, and these are TCR, T cell receptors. Very simple, जो रिसेप्टर जो रिसीव करने के लिए है एंटीजन को, वो अगर T lymphocyte पे है, they are known as TCR, T cell receptor, and antigen which are received by the B cell, so that is the BCR. Actually these are the, actually क्या है ये? BCR is a surface immunoglobulin. Surface immunoglobulin, as you know कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो अटैच्ड होगी, एंटीबॉडीज़ which are attached to the surface, so they behave as a receptor. So these BCR is the immunoglobulin. So now free antigen bind with this variable region of the immunoglobulin. ठीक है, तो ये इसको बाइंड हो गया एंड नाउ देयर इज़ द
selection. So this B cell is selected because this B cell is pre-programmed for a particular antigen. ये जो एंटीजन जो था सेम एंटीजन, दिस वन इज हियर एंड दिस वन सेम एंटीजन, दिस वाज एक्सप्रेस्ड बाय द MHC एंड दिस वाज प्रेजेंट इन द टिश्यू ऑफ ब्लड फ्रीली. ठीक है, वो वही एंटीजन है बट ये फ्री थे और वो बाइंड था MHC से. सो दे कम हियर, दे एक्सपेंडेड, इसका जो है ग्रोथ. सो दिस इज द selected B cell. This was selected T cell and this is the selected B cell. ये आप देखिए T cell पे there BCR bind with the antigen, free antigen at their variable arms. उसकी जो variable arms हैं immunoglobulin के, उससे वो bind हो गए. Okay. Now after binding of this there is some changes. देखिए, there is a protein, this one here, this one is the protein CD79. 79 मैंने कहा बहुत से जो है CD एंटीजन है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन इनसाइड एंड आउट सरफेस प्रेजेंट मॉलिक्यूल. तो हियर CD19 विच एक्टिवेटेड व्हेन एंटीजन बाइंड विद द रिसेप्टर. ओके, जब ये इससे बाइंड कर जाता है so there is a activation of it and give message to the nuclear machinery. Then there is a activation of machinery, so there is a formation of protein, and now these proteins when formed they form receptor on the surfaces. ये receptor form कर देंगे. This selected B cell have a receptor. ठीक है, पहले B cell जो था वो नहीं होगा, जो नए B cell होंगे इमेच्योर थे, एंटीजेनिकली एक्टिव जो B cells हैं अब वो सेलेक्टेड B cells हैं. अब इनके सरफेस पे एक जो है रिसेप्टर होगा. ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स जो होंगे ये पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल को बाइंडिंग के लिए होंगे. सेम इसी टाइप जब नंबर ऑफ T cells जब फॉर्म हो जाते हैं दे प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इंटरल्यूकिन कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, B cell growth factor. So this molecule bind with the receptor which present on these selected B cell bind, that is interleukin 4 secreted by T cell. So T cell communicate with the B cell, that is cytokine is the molecule which communicate with the two cell, so name is interleukin. It means they communicate between two different cells. So T cell communicate with B cell. Okay, so here there is a growth of B cell. अब ये जैसे ही ये B cells इंटरल्यूकिन से बाइंड हो जाएंगे, नंबर ऑल दीज T cells secrete interleukin 4. So ये number of interleukin 4 which are bind with the receptor on the B cell and they stimulate the nuclear machinery of the B cell. Okay, तो ये सारे जो है सब secrete होंगे. तो इंटरल्यूकिन दैट इज़ द, आप उसको अदर नेम कर सकते हैं B cell growth factor. Interleukin 4 is B cell growth factor, other name for this. So B cell growth factor that is called interleukin 4 secreted by T cell bind to the receptor which present on the B cell. Okay, अब ये जो फॉर्म हो गया तो इसकी जो मशीनरी जो होगी वो एक्टिवेट, इसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो जो है जीन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, सो फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ दीज अनदर molecule is secreted. There is the opening of genetic box. ये जो T cell की genetic box है, जो उसकी जो जीन्स है they opened out, वो बहुत तेज़ी से खुल जाते हैं. बहुत से जेनेटिक जीन्स जो है वहाँ पे खुल जाएंगे and lots of
molecules are formed, that is known as interleukin 5. This one, all these secrete interleukin 5. This interleukin 5 is known as B cell differentiation factor. B cell differentiation factor. बात समझ में आ रही है? B cell differentiation factor. So there is a formation, division of B cell. This is a B cell, B cell, B cell, B cell, and they have a different kinds of receptor for the binding of interleukin 5. Okay, and when interleukin 5 is bind with this, there is a clonal expansion. ये बहुत ज़्यादा नंबर में उसका जो है फॉर्मेशन हो गई बी सेल की, एंड सो देयरली प्रॉपरली सेलेक्टेड बी सेल प्रोलिफरेट एंड एक्सपेंड. इसमें जो है एक्सपेंशन हुआ. सो देयर इज कोलोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन. नाउ व्हेन इंटरल्यूकिन 5 को हम कह सकते हैं बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर दैट डिफरेंशिएट द बी सेल and it will changes into the oval in shape. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं they become oval in shape. ठीक है. So oval in, there is a differentiation into oval in shape. These are oval in shape and have Golgi body, and this nucleus become crossed. So these are antibody secretor. Antibody secretor. What type of antibody? Antibody just that the against this antigen, both is the same. अब ये जो एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी सीक्रेट होगी, सेम एंटीजन के अगेंस्ट लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड. thousands antibodies are formed. So these cells are known as plasma cells, you know. So ये जो after differentiation जो मिला, these are plasma cells. So plasma cell give antibodies. ठीक है, ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन. सो प्लाज्मा सेल द फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज़. एंड यहीं पे हमें कुछ सेल्स जो कि प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे नेम्ड मेमोरी सेल. ठीक है, वो इस एंटीजन के लिए पार्टिकुलर जो है वो मेमोरी स्टोर करके लेंगे. जब कभी दोबारा इन्फेक्शन होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे. ओके, तो बात समझ में आ गई. तो ये हमारी जो है कंप्लीट स्टोरी. अब यहाँ पे जब एंटीबॉडी बन गई तो जो वहाँ पे हमने बैक्टीरिया देखा था जो कि ये आपके न्यूट्रोफिल थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और ये मैक्रोफेजेस थे. वो मैक्रोफेज तो यहाँ ले आया जो लिम्फोसाइट में थे, न्यूट्रोफिल यहीं पड़ा था, वो फैगोसिटोज कर सकता है. तो अब यहाँ जो ये पैथोजन पड़े हुए थे, जो हमारे एंटीजेंस थे, उनके फ्रैगमेंट्स थे, वो सारे जो है अब एंटीबॉडी उस पर किल करेगी. वो ब्लड से होती हुई बहुत तेज़ी से यहाँ पे एंटीजेंस जो फ्रैगमेंट्स हैं उसको जो है वो इनगल्प करेगी, और यहीं पे हमारा ऑप्सोनाइजेशन होगा. सो देयर इज एंटीबॉडी बिहेव एज ए ऑप्सिन इन मॉलिक्यूल. तो ये फाइगोसाइटोज होने में हमारे ये जो हेल्प करेगी एंटीबॉडी, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा उसमें, वो हमारी ऑप्सोनाइजेशन होगा जिसमें कि फैगोसाइटोसिस होगी. तो ये हमारी कंप्लीट एक एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है. सो देयर इज़ अ फर्स्ट स्टोरी इन विच मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन और टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन देखा. इन सेकेंड केस देयर इज़ एक्टिवेशन ऑफ बी सेल. तो ये दो तरह से वर्क कर रहे हैं. एक टी सेल जो कि बहुत ही स्पेशली ट्रीटेड एंटीजन को जो है प्रेजेंटेड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से प्रेजेंट किया जाएगा बाय एमएचसी, तभी वो उसको रिकग्नाइज करेगा और नेक्स्ट एक्टिवेशन में जाएगा. ठीक है. तो सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन वहाँ होगी. बट जो बी सेल है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हम्बल है. वो जो है जो फ्रीली टिश्यू में पड़े हुए जो एंटीजेंस हैं
वो जो है उसको जो है जब वो सर्कुलेशन के थ्रू लिम्फ नोड में पहुंच जाते हैं तो वो बी सेल जो है उनको अपने रिसेप्टर पर ले लेता है, बी सेल रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा और एक्सप्रेस कर देता है। ऐसी सिचुएशन में ये सेकेंड स्टोरी रन करेगी और बी सेल सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन एंड देन क्लोन एक्सपेंशन में जाएंगे। सो हियर इट इज द डिटेल अबाउट क्लोनल सिलेक्शन and expansion of T cell, helper T cell, that is the helper T cell, and here the clonal selection and expansion of B cell. Okay, तो ये स्टोरी हमारी रहेगी, ठीक है। So finally we can summarize innate immunity and acquired immunity. आप देखिए there is a host defenses में हम क्या देखते हैं, innate and non-specific responses and acquired and specific responses. किसी भी होस्ट का जो डिफेंसेस है, हमारा जो प्रोटेक्शन है किसी पैथोजन के अगेंस्ट, दोनों ही मिलके हम काम करते हैं। उसमें हमारे इम्यून सेल्स जो होंगे दोनों तरह से मिलके काम करते हैं। हमारा इननेट और नॉन स्पेसिफिक जो ऑलरेडी हमेशा ऑन रहता है, ऑल टाइम ऑन, उसको टाइम नहीं लगता है, एवरी टाइम ऑन, ठीक है, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक ऑन। ओके, एंड क्विक भी रिस्पॉन्स करता है। तो अब इसमें हम देखिए, हमने इन पहले भी देखा था नंबर ऑफ बैरियर्स आर देयर, सेल जिसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होंगी उसमें वो आप देखिए, ग्रेनुलोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, NK सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द innate immunity and barriers, physical barrier हमने पहले भी देखा था, anatomical barrier, physical barrier, chemical mediators, they are involved in the innate immunity. So skin, mucous membrane, etc., number of molecules and defenses, lysozyme, complements, these are all chemical molecule which mediate the non-specific responses. During this there is a inflammation, cell cooperation, opsonization, resident responders, ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट होगी। और एक्वायर्ड दैट इज़ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में जो हम देखेंगे, सेल जिसमें क्या है, सेल इसमें हमारी टी सेल एंड बी सेल हैं मेजरली, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, टी सेल एंड बी सेल आर इन्वॉल्व हियर। स्पेसिफिकली दे प्रोड्यूस मेमोरी सेल, चाहे वो टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल मेमोरी सेल होंगी या जो है वो बी सेल मेमोरी सेल होंगी। एंड डिस्क्रिमिनेशन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये रिकग्नाइज होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जिसके लिए हमारी MHC जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो किस तरह के एंटीजन्स को जो है लेंगी, और MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 वो रिकग्नाइज करेगी लिम्फोसाइट से। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली, ठीक है। तो ये हमारा एक कनेक्टिंग लिंक, इस दोनों के बीच में हमारा जो मेन है वो कौन है, वो हमारा एक APC है, APC, जो दोनों के बीच में, यहाँ मैक्रोफेजेस ने उसको लिया और इसको जो है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में उसकी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया और आगे स्टोरी जो है प्रोसीड हुई, ठीक है। तो ये बहुत लंबी स्टोरी भी है बट इट इज़ स्टोरी, सो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसको ले सकते हैं और स्टोरी की तरह से समझ सकते हैं। ओके, हम लोग इसको एक बार फिर से ब्रीफ करते हैं। तो क्या हुआ कि इननेट इम्यूनिटी से हमें क्या मिली, इननेट इम्यून सिस्टम जब हमारा काम कर रहा था, इननेट इम्यूनिटी, तो हमें न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो लार्जर साइज़ के हैं, ठीक है, इस पे जो है ये जो है हमारे जो है ये पैथोजेंस जो है ये इसने फ्रीली छोड़ दिया, ये दिस इज़ द एंटीजेंस, और ये जो है पैथोजन जो हाँ MHC के थ्रू इस पे जो है वो होल्ड किया जाएगा। तो हमारा जो MHC है ये इसने इसको सरफेस पे, ये आपका MQ है, मैक्रोफेज है, और ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल, दिस इज द सिंपल, वेरी सिंपल, दिस इज न्यूट्रोफिल, दिस इज द मैक्रोफेज,
ठीक। अब ये न्यूट्रोफिल के जो फ्री एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजेंस हैं, दैट इज़ एपिटॉप्स, वो जो है अगर बी सेल पे जाते हैं, दिस इज़ द बी सेल, तो बी सेल पे जो रिसेप्टर है, बी सेल का रिसेप्टर क्या है, सपोज बी सेल हैव बी सेल रिसेप्टर इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन, और सॉरी इसको जो है हमें कलर चेंज कर देना चाहिए, neutrophils, macrophages. Neutrophils are multilobe nucleus, have multilobe nucleus. This is the one large nucleus, ठीक है। And here this is the, suppose ये आपके fragments हो गए, and here the MHC, and this present the antigen molecule, okay, and these free antigens which is B cell which have receptor, okay, this receptor that is immunoglobulin, तो ये इससे बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे इससे बाइंड हो जाएंगे, बिकॉज कि ये बहुत ही सिंपल है और कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी काइंड के एंटीजन को वो ले लेगा। बट हमारा जो टी सेल है, टी सेल वहाँ रिसेप्टर है जो सिलेक्टेड होगा, टी सेल रिसेप्टर, वो इसको जो है बाइंड करेगा, इसके बीच जो है, सॉरी ये एक ये रिसेप्टर उससे कनेक्ट होगा और ये टी सेल, ठीक है, टी सेल होगा। और टी सेल पे हमारा जो है वो क्या क्या है, इस पे हमने आपको बताया कि ये एक CD4 भी है, CD4 भी है, एक हमने बताया कि ये कि यहाँ पे आपका एक है CD28, ये CD28 भी है, स्पेस इज़ वेरी नैरो, 28 CD28, जिसका जो है कनेक्शन जो है एक मॉलिक्यूल जो इससे कनेक्टेड है जो B7 है, B7, ओके, फाइनली इसको थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, B7, तो ये एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्टिवेशन और ये सेकंड लाइन ऑफ एक्टिवेशन, सेकंड सिग्नल, ठीक है, ये हमें देगा। तो अब इसके बाद जब ये सारी जो है चीज़ें हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा कि जो टी सेल्स होंगी वो हमें टी सेल, वो इंटरल्यूकिन, वह हमने बताया था इंटरल्यूकिन, इसी से जो है वो इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट हो रहा है, और जो ऑटोक्राइन है वो सिक्रीट करेगा, नेक्स्ट इसको प्रोलिफरेट करेगा और इंटरल्यूकिन 4 सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब 4 जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो बी सेल के एंटीजन हमारा ऐसा था, और ये इंटरल्यूकिन 4 इस पे रिसेप्टर सेलेक्टेड जो क्लोन है हमारा उस पर रिसीव होगा और उससे बाइंड करेगा और इसकी मशीनरी को जो है वो स्टिमुलेट कर देता है, और उसके स्टिमुलेशन से जो है टी सेल में फिर से एक्टिवेशन होगा, और फिर नेक्स्ट जो होगी वो एक नंबर ऑफ इंटरल्यूकिन 4 की फॉर्मेशन होती है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इंटरल्यूकिन आपका इंटरल्यूकिन 5 फॉर्मेशन होती है। तो इंटरल्यूकिन 4 इज़ द ग्रोथ फैक्टर, बी सेल growth factor, and interleukin 5 is B cell differentiation factor, okay, this is the interleukin 5 और this is the interleukin 4 मेजर रोल, ठीक है। तो ये इसमें फिर आप देख रहे हैं कि इंटरल्यूकिन 5 और 4 का बहुत रोल है जब एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक स्टोरी जो हम स्टोरी की तरह समझते हैं, बहुत सी बुक में बहुत तरह से प्रेजेंटेशन है, बट दिस इज़ द क्लियर पिक्चर ऑफ द एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये पूरा हम लोगों ने 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया। फर्स्ट में हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को देखा, देन फिर टी सेल बी सेल को देखा, CD एंटीजन देखे उसके, देन उसके बाद हमने साइटोकाइन डिपेंडेंट जो है वो सिलेक्शन देखा,
क्रॉस सेलेक्शन रेगुलेशन देखा, एंड देन जो है हमें फिर आपका क्लोन सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। तो टोटली इतने सारे स्टेप से होता हुआ हमारा एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है पास होगा, तब जाके नेचुरली कोई भी चीज़ हमें अडॉप्ट करनी है तो हमें कोई एक स्टेप में नहीं, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यून सेल्स आर प्रेजेंट, देन दे बिहेव इन डिफरेंटली। तो कोई भी लिमिट नहीं है हमारी इम्यून सेल, जो कि नेचर का गिफ्ट है, जो आज हम कोरोना के उसमें देख भी रहे हैं कि एवरीबडी नोज दैट कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। ये सब सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें हेल्दी रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये इंटरल्यूकिन ही है जो हमें राइट वे से फंक्शन कराएंगे। अगर रॉन्ग इंटरल्यूकिन फॉर्म हो गई तो रॉन्ग वे से वर्क होने लगेगा हमारा इम्यून सिस्टम, वो हार्मफुल होगा। जैसे हमने कई बार टर्म सुना है, इंटरल्यूकिन स्टॉर्म इज़ नॉट गुड फॉर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा आज। दैट इज़ द वेरी वास्ट चैप्टर। आप अगर इसको समझ जाते हैं, आई मीन कि बेसिक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जो है हमारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम डिटेल एक एक सेल को अलग से फिर लेंगे, अलग से MHC लेंगे, अलग से इम्यूनोग्लोबुलिन लेंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।